Hi, it's a very good morning to all of you, and I welcome you again to the class of Kerala Public School. So, circle we started yesterday, and just the introduction we told, and the topic we have to study in class 10, that is the tangent. So, tangent means the line segment or the line that touches the circle at only one point. So, this is the circle, and this is the tangent. This is the tangent at point P. The point where the line touches the circle, the point where the tangent touches the circle, that point is known as the point of contact. Point of contact. कभी क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट? द पॉइंट वेयर द टेंजेंट मीट्स द सर्कल, द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टचेस द सर्कल. So at this point also you can draw tangent. So that means as a whole a circle can have infinite number of tangent. Why? Because a circle is made up of infinite number of points. At each and every point you can draw the tangent. Good. So a circle will have infinite number of tangents. Good. So the point where the tangent touches the circle, that point is known as point of contact. So here the point of contact is P. Here suppose it is R. So here the point of contact is R. So two theorems we have got on tangent for class 10. So that two theorems first I will write the two theorems, then आपको प्रूव करूंगा आज एक, tomorrow एक प्रूव करूंगा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करने जाएंगे हम. तो दो थ्योरम जो है उसका थ्योरम्स ऑन टेंजेंट्स ऑफ सर्कल में पहला थ्योरम ये कहता है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो दिस इज अ सर्कल, दिस इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल. फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल. दो ही टेंजेंट बना सकेंगे ना इस सर्कल पे बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से, एक तो ये, एक ये. Suppose the point of contact is P here, suppose the point of contact is R here. Got it? तो theorems on the tangents of circle ये कहता है पहला theorem कि from an external point two tangents can be drawn to a circle and the length of the tangents are equal. Length of the tangents are equal. That means length is taken from the external point to the point of contact. Remember this. The length of tangent is taken from the external point to the point of contact. That means this much is the length of tangent. Not पूरा नहीं लेना आपको. And here also the length of tangent is from the point of contact. Suppose A is the point of contact. From the point A to from the external point A to the point of contact R. So this much is the length of tangents. तो पहला थ्योरम ये कहता है कि from an external point, two tangents can be drawn. Two tangents can be drawn to a circle. Two tangents can be drawn to a circle and the length of the tangent and the lengths of the tangents are equal. This is the first theorem. This is the first theorem. ये कहता है कि एक बाहर पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे दो टेंजेंट बना सकते हैं और दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होगा एंड दैट लेंथ इज टेकन फ्रॉम दैट एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. आगे तक नहीं जाना, समझ गए हो ना? हाँ. तो ये बोला आपका पहला थ्योरम. इसका प्रूफ भी आएगा, प्रूफ बता देंगे. इसको ना इसके साथ और दो सब पार्ट है, मतलब यही थ्योरम पे दो और सब पार्ट है. दो सब पार्ट ये है कि when suppose you draw two tangents from an external point to the circle, the theorem is saying that the length of the tangents are equal, and it is also saying that these two tangents will subtend equal angles at the center. That means suppose this is the center O. मैं बोला कि एक तो जब आप बाहर से क्या करोगे, प्रूफ कर दूंगा, इसका प्रूफ कर दूंगा, पहले लिख लेते स्टेटमेंट उसके बाद प्रूफ कर दूंगा.
तो ये थ्योरम ये कहते हैं कि एक बाहर पॉइंट से आप एक सर्कल पे दो टेंजेंट बना सकते हो, दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होगा और ये दोनों टेंजेंट ने सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, दैट मीन्स ये दोनों एंगल बराबर होगा। गॉट इट। और उसी का सब पार्ट और ये भी कहता है एंड दैट टू टेंजेंट्स विल मेक द इंक्लाइंड एंगल्स ऑल्सो इक्वल विद द लाइन ऑफ जॉइनिंग, मतलब ये दोनों टेंजेंट लाइन ऑफ जॉइनिंग के साथ भी इक्वल इंक्लाइंड एंगल्स बनाएंगे। गॉट इट। मतलब ये कहता है कि अगर बाहर एक पॉइंट से आप एक सर्कल पे दो टेंजेंट बनाओगे तो उसका लेंथ बराबर होता, वो दोनों टेंजेंट ने सर्कल सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड किया, वो दोनों एंगल भी बराबर होगा। देख लो एंगल ऑफ सबटेंशन इज कौन सा है, विच इज द एंगल दिस टू टेंजेंट्स आर सबटेंडिंग एट द सेंटर, दिस टू आर द एंगल्स, ये जो मैं मार्क कर रखा डबल मार्क, ये दोनों एंगल्स दैट दिस टेंजेंट्स आर सबटेंडिंग एट द सेंटर। और एक बोला कि the angle of inclination the tangents will make with the line of joining they are also equal, that means ये दो the angle of inclination, इसका प्रूव कर दूंगा तब समझ में आएगा, इजी प्रूव है। angle of inclination by the tangents with the line of joining, with the line of joining are equal. So this is the first theorem. The first theorem says that from an external point two tangents can be drawn to a circle and the length of tangents are equal in that case, and that length is taken from the external point to the point of contact. दूसरा part उसी में आएंगे, उसी में बोलेंगे कि that two tangents will subtend equal angles at the center, that means these two angles are also will be equal. थर्ड पॉइंट कहता है उसी का, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि दैट टू टेंजेंट्स विल मेक इक्वल इंक्लाइंड एंगल्स विद द लाइन ऑफ जॉइनिंग, विद द लाइन ऑफ जॉइनिंग, मतलब ये दो। तो ये तो था फर्स्ट थ्योरम, लिख लो, प्रूव करूंगा फिर समझ में आएगा। ये फर्स्ट थ्योरम था। और सेकंड थ्योरम ये कहता है कि टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन। सेकेंड थ्योरम ये कहता है कि द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट at the point of contact, at the point of contact। तो सेकेंड थ्योरम ये कहता है कि सेंटर से जो रेडियस लगाओगे आप टेंजेंट के ऊपर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये 90 डिग्री होगा। यहाँ पे नहीं होता ये 90 डिग्री नहीं है, ये यहाँ पे भी रेडियस वी आर द लाइन सेगमेंट वी आर ड्राइंग फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट, बट इट इज नॉट 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन सा होगा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर जो लाइन बनाओगे रेडियस, सेंटर से जो रेडियस लगाओगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, तो वो 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है ऑन द टेंजेंट। दैट मीन्स द रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, रेडियस ऑब्वियसली विल बी ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, तो द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये दोनों का प्रूफ करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट थ्योरम। ये दो थ्योरम हमको स्टडी करना है अभी, थ्योरम्स ऑन सर्कल में, थ्योरम्स ऑन द टेंजेंट्स ऑफ सर्कल में, दोनों को प्रूव करेंगे, फिर वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। तो फर्स्ट थ्योरम, कम बैक। तो दिस इज द सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम का ये डायग्राम है, ये ना बनाना, ये बनाना। इसके नीचे लिख देना
सपोज दिस इज एक्स वाई इज द टेंजेंट, एक्स वाई इज द टेंजेंट, तो इसमें लिख देंगे हम OP इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई. दिस इज द सेकेंड थ्योरम. OP इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई. गुड. सो फर्स्ट थ्योरम देखो, फर्स्ट थ्योरम में ये बोला कि एक सर्कल पे एक बाहर का पॉइंट से दो टेंजेंट बना सकते हैं हमने, एक ये एक ये. गॉट इट? फर्स्ट थ्योरम सेज दैट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, सपोज दिस एक्सटर्नल पॉइंट इज A, दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर O. तो फर्स्ट थ्योरम सेज दैट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, दो टेंजेंट बना सकते हैं. Let the points of contact of that two tangents is P and Q with the circle. So first theorem says that from an external point two tangents can be drawn to a circle and the length of the tangents are equal. वही बात बोला कि पहला पॉइंट बोला कि दोनों का लेंथ बराबर होता है. दूसरी बात बोला कि that two tangents will make equal angles at the center. बोला कि ये दोनों एंगल भी बराबर होता है. थर्ड पॉइंट उसी थ्योरम में बोला था कि द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट विद द लाइन ऑफ जॉइनिंग आर आल्सो इक्वल. मतलब ये दोनों भाग भी बराबर है. तो ये थ्योरम यूं कहता है कि बाहर पॉइंट से, बाहर एक पॉइंट से अगर हम सर्कल पे दो टेंजेंट बना सकते हैं, अगर वो दो टेंजेंट बनाएंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होगा. द टेंजेंट्स विल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, दिस टू एंगल्स, एंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन the tangents will make with the line of joining, they are also equal. तो this is the point. That means हमारे को इसमें स्टेटमेंट तो वो लिख दूंगा जो थ्योरम लिखा था. सबसे पहले आपको कोई भी थ्योरम प्रूव करने के लिए वो स्टेटमेंट लिख देना जो मैं बोला था. उसके बाद हमको इसमें टू प्रूव क्या करना होगा, टू प्रूव करना है हमको AP इक्वल टू AQ. टू प्रूव करना है हमको एंगल AOP इक्वल टू AOQ. ये दो प्रूफ करना, और एक प्रूफ करना है PAO इक्वल टू एंगल QAO. So these are the three things we need to prove in the first theorem. That means if the two tangents are drawn from an external point to a circle, the length of the tangents are equal. Second point, the tangents will subtend equal angles at the center, that is POA and QOA. ये दोनों इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये दोनों को इक्वल दिखाना है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल दिखाना है, एंड द एंगल्स ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट्स विद द लाइन ऑफ जॉइनिंग आर इक्वल. ये दोनों को भी इक्वल दिखाना है, दैट इज PAO एंड QAO. तो इसको प्रूव करना है. तो टू प्रूव तो आज बता देता हूं, कल कर दूंगा मैं. व्हाई? बिकॉज वी आर लैक ऑफ टाइम हैविंग. सी, ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे हमको. आपका एक जो सेकंड थ्योरम बोला था मैं कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर. तो ये परपेंडिकुलर कर दूंगा मैं. तो फर्स्ट कंडीशन, ये दोनों ट्रायंगल में एक राइट एंगल एक राइट एंगल आ गया. गुड. ये दोनों ट्रायंगल. नेक्स्ट, ये कॉमन लाइन है और ये दोनों साइड बराबर है. दैट मीन्स एक तो ये दोनों रेडियस है, एक ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और एक हमारा ये AO इज द कॉमन साइड. दैट मीन्स RHS आपको मिला है. RHS क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. सी इन दिस टू ट्रायंगल, वन इज राइट एंगल इन बोथ द केसेस, 90 डिग्री 90 डिग्री. हाइपोटेन्यूज, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, AO इज द हाइपोटेन्यूज, कॉमन है दोनों में, एंड साइड इज PO और OQ. तो बाय RHS ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है. दिस इज द कॉमन साइड, दिस इज 90 90, दिस इज PO इक्वल टू OQ. सो बाय RHS तो ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएंगे. देयरफॉर AP इक्वल टू AQ, देयरफॉर ये एंगल इक्वल टू CPCT से, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, देयरफॉर दिस एंगल इक्वल टू दिस इक्वल बाय CPCT. कल ये लिख दूंगा, आज हमारा टाइम कम है. अगेन सी, ये जो मैं बोला ना आपको, व्हाई दिस इज राइट एंगल, व्हाई दिस इज राइट एंगल, ये जो राइट एंगल कहां से आया कि सर आपको जो सेकंड थ्योरम बोला था, दैट प्रूफ आल्सो मैं कल कर दूंगा. तो फर्स्ट ये प्रूफ कर दूंगा, फिर ये 90 डिग्री कहां से आया, दोनों प्रूफ कर दूंगा. ओके बाय.